हाय, आई एम हर्ष और आज के वीडियो में हम जावा के बेसिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जावा क्या होती है और जावा के बारे में जानने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ वे टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स बिकॉज कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेजेस डेट आर जीरोस एंड वंस, जो कि ह्यूमंस के लिए डिफ़िकल्ट है। अगर हम सारी चीज़ बाइनरी में करने जाए तो हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं एंड वी यूज समथिंग कॉल्ड अ कंपाइलर दैट चेंजेस ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज दैट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू कंप्यूटर फ्रेंडली वन। तो हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करते हैं और कंपाइलर सिंपली क्या करता है, उसको मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और हमको वापस देता है। और सेम वे मशीन को भी ऐसे ही हमारी जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लिख रहे हैं वो मशीन को देता है। नाउ सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर C, C++, Java, Python are all popular programming languages, and there are many more programming languages, and all these programming languages are used for specific tasks like developing a website or artificial intelligence in machine learning or for data analytics or to create mobile application softwares and enterprise level applications। तो हर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका एक अपना पर्टिकुलर टास्क होता है। Now the type of programming languages, तो there is two types, high level and low level। अब high level जो होती है, it is a programming language that is designed to be easily understood and written by humans, and code written in high level languages is generally more readable and resembles human language, making it easier for programmers to understand and maintain। Some of the examples of high level language are Java, C, C++, Python। and low level language जो होती है वो machine dependent होती है, that is zeros and ones। Now let's start with what is Java। So Java जो है वो एक high level programming language है and it is also an object oriented programming language that is developed by James Gosling at Sun Microsystem, and the language was officially released by Sun Microsystem in 1995। अब Java is popularly known for write once run anywhere philosophy, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। Now what are the features of Java? So Java is simple, the syntax is easy to understand and it is simple and clean। Now the object oriented part, so Java is a object oriented programming language, that means we cannot run a Java program without creating a class। In Java, by using object oriented programming concepts we can achieve readability, security and reusability। Now what is platform independent? तो हमने अभी डिस्कस किया Java is write once run anywhere। So that is what platform independent is। Java code can be executed on multiple platforms, for example Windows, Linux or any other operating system, and Java code is compiled by the compiler and converted into the bytecode। तो ये जो bytecode है ये आप कहीं पे भी ले जाए तो उस सिस्टम में आपको वापस से आपका प्रोग्राम कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने जो जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो दिस bytecode is a platform independent code because it can run on multiple platforms। Now Java is known for security। Java provides various security features to the programmers to prevent their application from unauthorized access, threats and viruses। And Java is robust also, which means it is capable of handling unexpected termination of a program। So there are two reasons behind this। First, it has the most important and helpful feature called exception handling, जिसमें हम try catch block का use करते हैं to handle the exceptions ताकि जो unexpected termination है वो ना हो जाए। And if an exception occurs in Java code, there is no harm will happen, whereas in low level languages the program will crash। तो ये हो गए हमारे 5 features Java के। Another one is it is interpreted। So you have learned that they use either the compiler or an interpreter, but Java programs use both a compiler and an interpreter। Java programs are first compiled to generate the bytecode, and then the JVM, the Java Virtual Machine, interprets the bytecode during the execution। Along with this JVM, it uses JIT compiler। It increases the speed of the execution of the compilation। So now काका जावा यूज़ होती है to develop enterprise softwares। वेब डेवलपमेंट में भी जावा यूज़ होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में टू क्रिएट अ ई कॉमर्स वेबसाइट, एंड मोबाइल एप्लीकेशन में स्पेसिफिकली एंड्रॉयड के लिए जावा इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Now what is the difference between Java and C++? तो जो मेन डिफरेंस है वो है Java प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। Java जो है वो पॉइंटर्स को सपोर्ट नहीं करता, C++ पॉइंटर्स को सपोर्ट करती है। Java में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है और C++ डजंट सपोर्ट ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन।
और भी डिफरेंसेस है जो हमने मेन वीडियोस में डिस्कस किए, जहाँ पे हमने डिटेल में पूरा डिस्कस किया है। आज हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा आपको फास्ट पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे हम खाली मेन पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। सो डिसएडवांटेज क्या क्या है जावा के? सो इट इज़ एज फास्ट नॉट एज फास्ट एज नेटिव कोड, बिकॉज जावा हैज़ टू गो थ्रू द ओवरहेड ऑफ जावा वर्चुअल मशीन। सो लो लेवल प्रोग्रामिंग के लिए जावा सूटेबल नहीं है। सो इट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ जावा। नाउ व्हाट इज़ जावा वर्चुअल मशीन? सो first of all, it is the core of Java runtime environment, and it provides a platform, and it is known for executing the Java program and generating the bytecode. So it converts the bytecode into instructions readable by your actual system, and you cannot directly install or run JVM. It is included within the JRE and JDK. अब JRE क्या होता है? Java runtime environment. सो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में JVM तो इंक्लूडेड होता ही है, प्लस सम एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज डेट आर रियली इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर वर्किंग विद जावा एप्लीकेशन। एंड जावा डेवलपमेंट किट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस द जावा कंपाइलर एज वेल एज डिबगर एंड डॉक्यूमेंटेशन प्लस JVM एंड JRE। तो यहाँ पे जो डायग्राम है इससे आप थोड़ा समझ सकते हैं तीनों में डिफरेंस। तो ये हमारा JVM है, JVM प्लस लाइब्रेरी क्लासेस इज इक्वल टू JRE, दैट इज जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। और इसमें अगर हम डेवलपमेंट के टूल्स जोड़ दें जैसे डीबगर एंड कंपाइलर एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, देन इट इज़ अ जावा डेवलपमेंट किट। नाउ अगर हमको सिस्टम में देखना है हमारे जावा इंस्टॉल्ड है या नहीं है, तो हमको क्या करना है? कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, एंड हियर वी हैव टू टाइप जावा -वर्जन। तो अगर यहाँ पे वर्जन डिस्प्ले हो रहा है, डेट मीन्स जावा जो है हमारे सिस्टम में परफेक्टली इंस्टॉल्ड है। नाउ हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होता है। सो वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, जहाँ पे हम एक वैल्यू स्टोर करवाते हैं। सो बेसिकली वेरिएबल इज़ अ कंटेनर। अब यहाँ पे वैल्यू जो है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, तो वो टाइप हमको जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हमको डिफाइन करना पड़ता है, एंड डेट इज़ नोन एज डेटा टाइप। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमको कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी है, बी इट अ नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू, तो हमको क्या करना है? इंट यूज़ करना है, इंट। और वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, बिकॉज वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, जहाँ पे हम कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वेरिएबल की वैल्यू दे दी a, मतलब हमने नेम दे दिया वेरिएबल को a, और इसके बाद हमको सेमीकोलन लगाना पड़ता है अगर जावा में हम कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं। अब इसकी हम वैल्यू भी दे सकते हैं, तो उसके लिए हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हमको सिंपली वैल्यू दे दी है 10। आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हो -10, या फिर आप 0 भी दे सकते हो, आपकी मर्जी आपको क्या वैल्यू देनी है। और हम यूज़र से भी वैल्यू ले सकते हैं, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सो वेरिएबल्स के 3 टाइप होते हैं, लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लोकल वेरिएबल क्या होता है। तो मान लो मेथड 1 है एक, उसके अंदर हमने इंट a = 10, तो a जो वेरिएबल है वो जो है लोकल वेरिएबल हुआ मेथड 1 का। अब मेथड 2 अगर इसको एक्सेस करना चाहता है तो देयर विल बी एन एरर, बिकॉज इसका जो स्कोप है वो मेथड 1 के अंदर ही ख़त्म हो गया, मेथड 2 इसको एक्सेस नहीं कर सकता। इसको हम एक बार प्रैक्टिकल में भी देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है void डिस्प्ले, और इसके अंदर अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे int i = 10, और देयर इज अनदर मेथड void show, और शो में हम सिंपली क्या कर रहे हैं? i की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं 10 से। तो अब यहाँ पे एक एरर आएगी, बिकॉज वो बोलेगा कि i जो मेथड है वो डिक्लेयर करो, क्योंकि ये तो इसके अंदर हो गया, और इसका स्कोप कहाँ पे ख़त्म हो गया? ये जो कर्ली ब्रैकेट ख़त्म हो रहा है यहाँ पे इसका स्कोप ख़त्म हो गया, बिकॉज इट इज़ अ लोकल वेरिएबल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लोकल वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल वो होते हैं जो एक क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है। सो अभी इस प्रोग्राम में आपको एरर आएगी, क्योंकि हमने क्या है, क्लास क्रिएट ही नहीं करी है। सो क्लास क्रिएट करने के लिए हमको क्या, क्लास कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद क्लास का नाम। सो बेसिक, आप कुछ भी नाम दे सकते हो क्लास को, और यहाँ पे ब्रैकेट आएगा और ब्रैकेट क्लोज होगा सबसे नीचे, जहाँ पे आपके सारे मेथड्स ख़त्म हो रहे हैं। अब हमको अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट a = 10, तो इसको इस क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, जैसे डिस्प्ले और शो, तो सब यूज़ कर सकते हैं। तो सो यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं a = a + 10, और या फिर हम यहाँ पे system.out.println का यूज़ करके a की वैल्यू डिस्प्ले करवाते हैं, तो वो हमको a की वैल्यू डिस्प्ले करके देगा, बिकॉज a जो है यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल है, इट इज़ डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास, नॉट इनसाइड अ फंक्शन। तो उसका जो स्कोप है वो यहाँ पे जब तक हमारी क्लास बंद नहीं होती, अंदर जितने भी मेथड हैं सब उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको इंस्टेंस वेरिएबल भी समझ में आ गया होगा।
उसको कौन कौन यूज़ कर सकता है? क्लास के अंदर जो भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हमने और जो भी मेथड्स क्रिएट किया हमने विद इन द क्लास। और अगर नेस्टेड क्लास यूज़ कर रहे हैं तो अंदर जो क्लास बना रहे हैं हम मेन क्लास के, वो भी इस इंस्टेंस वेरिएबल को यूज़ कर सकता है। इसका मेन क्या रीज़न होता है इंस्टेंस वेरिएबल का? हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं इनको इनिशियलाइज करने के लिए, और ये जो होते हैं इनका स्कोप पूरे क्लास में होता है। नाउ स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं? सो इट इज़ डिक्लेयर्ड विद अ स्टैटिक कीवर्ड। तो जो भी हम वेरिएबल बना रहे हैं, अगर वो कीवर्ड स्टैटिक के साथ यूज़ किया गया है, दैट मीन्स अ सिंगल कॉपी इज शेयर्ड अमंग ऑल इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास। तो जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, आप इस डायग्राम से समझिए, यहाँ पे आप एक स्टैटिक कीवर्ड ऐड कर दीजिएगा, स्ट्रिंग कॉलेज इक्वल्स टू IIT। अब ये एक स्टैटिक वेरिएबल है जिसको एक सेपरेट मेमोरी ब्लॉक मिला। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट 1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट 2 नाम का और स्टूडेंट 3 नाम का, तो तीनों सेम कॉपी इसके शेयर करेंगे। इससे क्या होता है? हमारी मेमोरी बचती है। तो फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स का डेटा ले रहे हैं और सब स्टूडेंट्स एक ही सिटी में हैं और सिटी का नाम है मान लो मुंबई। तो हमको बार बार वेरिएबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है हर सेपरेट ऑब्जेक्ट के लिए, और उनको सेपरेटली वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली एक स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हैं जिसमें हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखी है मुंबई, और वही सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो शेयर कर रहे हैं। इसका हम प्रैक्टिकल आगे देखेंगे। नाउ डेटा टाइप्स क्या होते हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। जब भी हमको कोई भी वेरिएबल क्रिएट करना है तो हमको उसके साथ डेटा टाइप यूज़ करना पड़ता है। हमने इंट जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इंट i इक्वल्स टू 10, इसको हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई कैरेक्टर स्टोर करवाना है तो कैर ch इक्वल्स टू, और सिंगल कोट्स में हमको वैल्यू देनी पड़ती है कैरेक्टर की। तो यहाँ पे जैसे हमने a वैल्यू जो है वो स्टोर करवाई ch में। सेम वे अगर हमको पॉइंट में कोई वैल्यू है वो स्टोर करवानी है, देन देयर इज फ्लोट। फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू तो 3.14f, एंड देन देयर इज डबल। तो डबल में भी अगर आपको कोई बड़ी वैल्यू है जिसमें पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट्स है तो हम डबल यूज़ करते हैं। और बाकी के भी डेटा टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल बूलियन। जावा में जो है स्ट्रिंग जो होता है वो एक क्लास है, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में नहीं गिना जाता, हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव में क्या क्या आते हैं? कैर, बाइट, शॉर्ट। आपको इस टेबल में जितने भी देख रहे हैं ये सारे प्रिमिटिव हैं। नॉन प्रिमिटिव में क्लासेस, इंटरफेसेस एंड एरेस। अब यहाँ पे सबकी साइज़ है, रेंज है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इंटीजर करके a इक्वल्स टू कोई वैल्यू नहीं देते तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। सेम वे लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन। बूलियन जो होता है वो ट्रू और फॉल्स स्टोर करता है। कैरेक्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एंड हियर इज़ द प्रैक्टिकल ऑफ इट जो हमने पहले के वीडियोस में डिस्कस किया है। नाउ जावा ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स जो होते हैं वो स्पेशल सिंबल्स होते हैं और कीवर्ड्स होते हैं that is used to perform specific operations on one or more operands। तो ऑपरेंड क्या होता है? ये जो 10 है और 20 है ये ऑपरेंड है, और बीच में जो प्लस है ये क्या है? ऑपरेटर है। अब ऑपरेटर्स के भी टाइप्स होते हैं। हियर द यूनरी ऑपरेटर्स डेट इज प्लस प्लस, माइनस माइनस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हमको प्लस प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करनी है तो हम क्या करेंगे? i प्लस प्लस, एंड i माइनस माइनस अगर 1 से कम करनी है। देन देयर इज पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट में क्या फ़र्क होता है? तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा ये जो है ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है। तो हमने a की वैल्यू 5 दी, b में हम क्या स्टोर कर रहे हैं? प्लस प्लस a। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? a की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हो रही है जो कि 6 हो गई, उसके बाद वो b को असाइन हो रही है। तो b में कौन सी वैल्यू जाएगी? 6। तो हम जब a और b को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 6 और 6 वैल्यू आएगी। अब सेम वे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट में क्या होता है? हम a प्लस प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले b को वैल्यू असाइन हो जाएगी, उसके बाद a की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होगी। तो a की इंक्रीमेंट होकर क्या हो गई? 6, और b को वो पहले ही असाइन हो गई थी तो b की क्या होगी? 5। तो सेम मैंने इन एग्जांपल्स में डिस्कस किया है। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? सो नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड मॉड्यूलस। तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे एग्जांपल में डिस्कस करी है। अब रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब जिसमें 2 ऑपरेटर एक साथ यूज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसमें दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो कंडीशन ट्रू होती है। फॉर एग्जांपल 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो इसमें इक्वल टू जो है वो ट्रू हो रही है, डेट मीन्स इट इज़ अ ट्रू। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास होते हैं एंड, और नॉट।
तो ये कोई दो कंडीशंस हमको अगर एक साथ चेक करनी है किसी इफ स्टेटमेंट के अंदर या फॉर लूप में, तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं हमारे पास एंड, और, एक्सऑर, कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड अनसाइंड राइट शिफ्ट। देन देयर इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू। तो इसमें हम दो ऑपरेटर्स को वापस से एक साथ यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है इंट a इक्वल्स टू 15। अब इसको हमको क्या करना है, 1 से इंक्रीमेंट करना है। तो हम या तो a प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं या फिर a प्लस इक्वल्स टू 1। तो a प्लस इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या होता है, a इक्वल्स टू a प्लस 1। तो इसको ही हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, a प्लस इक्वल्स टू 1। देन देयर इज टर्नरी ऑपरेटर। तो ये जो होते हैं ये शॉर्ट एंड ऑपरेटर्स होते हैं फॉर द इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, इंट मैक्स इक्वल्स टू, ब्रैकेट में हमने दिया है ए ग्रेटर देन बी, तो 10 इज ग्रेटर देन 5। तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली जो कंडीशन है वो ट्रू के लिए होती है कॉलन, और बी जो है ये फॉल्स के लिए होती है। तो वो ए की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवाएगा। तो मैक्स में कौन सी वैल्यू चली गई, ए की चली गई और ए की वैल्यू डिस्प्ले हो गई। सेम वे अगर ए जो होता है वो बड़ा नहीं होता तो वो फॉल्स तरफ जाता और बी की वो ज़्यादा होती वैल्यू, तो वो यहाँ पे बी की वैल्यू डिस्प्ले करता। सो ये जो होता है टर्नरी ऑपरेटर, दिस इज शॉर्ट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। देन ऑपरेटर प्रेसिडेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले प्रेसिडेंस किसका होता है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस का, देन यूनरी, देन अरिथमेटिक, देन शिफ्ट एंड देन रिलेशनल। नाउ जावा में कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनको हम एज अ वेरिएबल नेम या फिर क्लास नेम या फंक्शन का नाम नहीं दे सकते। जैसे एब्स्ट्रैक्ट है, एसर्ट है, बुलियन है, ब्रेक है। तो ये सब जो है ये प्री डिफाइंड मीनिंग्स होते हैं इनके जावा में, इसलिए हम इनको एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ फ्लोट और इसका नाम मैं दे देता हूँ क्लास, तो यहाँ पे मेरे को एरर आएगी बिकॉज क्लास इज़ ए रिजर्व कीवर्ड। क्लास के अलावा अगर मैं बुलियन भी नाम देता हूँ या फिर कोई भी नाम देता हूँ तो वो मेरे को एरर देगी अगर वो रिजर्व कीवर्ड होगा। नाउ यहाँ पे हम जो जावा का बेसिक सिंटेक्स होता है उसका मीनिंग समझेंगे। तो पहले मैं यहाँ आपको बेसिक सिंटेक्स टाइप करके बता देता हूँ। सो जावा में ये बेसिक सिंटेक्स होता है जिसमें हमको हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन बनाना पड़ता है बिकॉज जावा कंपाइलर लुक्स द फर्स्ट थिंग इन द प्रोग्राम इज व्हाट द मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है और यहीं से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चालू होता है। अब मेन फंक्शन जो होता है वो हमेशा किसी क्लास के अंदर होना चाहिए, इसलिए हमको क्लास बनानी ज़रूरी है जावा में। हम C++ में विदाउट क्रिएटिंग अ क्लास प्रोग्राम रन कर सकते हैं बट जावा में नहीं कर सकते। ये जो पब्लिक है ये एक्सेस स्पेसिफायर है, इसका मतलब है कि ये क्लास कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल है। सेम प्रोग्राम में एक्सेसिबल है, अगर किसी और पैकेज में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्सेसिबल है या नहीं है, तो वो ये एक्सेस स्पेसिफायर से पता चलता है। अगर हम पब्लिक यूज़ नहीं कर रहे तो हम और कोई भी स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड, हर एक का जो स्कोप होता है वो डिफरेंट होता है ना। अगर जावा प्रोग्राम को अगर हमको कंपाइल करना है तो हम जावा C कमांड का यूज़ करते हैं फॉलोड बाय नेम ऑफ द फाइल डॉट जावा, और अगर हमको रन करना है तो जावा और उसके बाद नेम ऑफ द फाइल। सो क्लास हम कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास फॉलोड बाय द क्लास नेम, और ये जो क्लास कीवर्ड है और मेनली क्लास क्या होता है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिस्कस करेंगे। बेसिक में अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक में हमको बस यही जानना होता है कि इसका सिंटेक्स कैसे होता है क्रिएट करने का क्लास का। देन क्लास फॉलोड बाय क्लास नेम और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस जब हम क्रिएट करते हैं उसका मतलब ये होता है कि ये जो अंदर जो भी काम हो रहा है वो इस क्लास के अंदर हो रहा है। तो कर्ली ब्रेसेस इंपॉर्टेंट है, अगर आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी एरर आएगी आपको। नाउ जो मेन फंक्शन है वो किसके अंदर होता है, वो हमेशा एक क्लास के अंदर होता है। पब्लिक जो है वो एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है जो एक स्कोप और विजिबिलिटी बताता है कि ये क्लास के अंदर जो भी क्रिएट हो रहा है वो कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल है और ये क्लास भी कहाँ पे एक्सेसिबल है। स्टैटिक जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अगर वो मेथड के साथ यूज़ हो रहा है डेट मीन्स दैट मेथड्स कैन बी इन्वोक्ड विदाउट क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट। सो ये जो मेन मेथड है ये डायरेक्टली कॉल हो जाता है, हमको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है मेन मेथड के लिए, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। इसका मेन फ़ायदा क्या है, द मेन मेथड इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी जावा एप्लीकेशन। सो व्हेन द जावा वर्चुअल मशीन स्टार्ट्स द एग्जीक्यूशन it looks for the main method to begin the execution, and since no objects are created at the start of the program, the JVM needs a way to call this method without creating any instance. That's why it is static.
तो हमेशा आपका मेन मेथड जो होता है उसकी मेथड सिग्नेचर हमेशा यही होती है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो ये जो है आपको रट लेना है। देन वॉइड क्या होता है, वॉइड एक रिटर्न टाइप है, जिसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो आपका मेन फंक्शन जो है वो यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा बिकॉज इसका रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड है। देन मेन जो है वो हमारे फंक्शन का नाम है। इट इज़ प्री डिफाइंड नेम इन जावा, मतलब हम वेरिएबल का नाम मेन नहीं रख सकते। एंड द JVM लुक्स फॉर द मेथड सिग्नेचर। कौन सी मेथड सिग्नेचर, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ एंड तक फॉलोड बाय कर्ली ब्रैकेट्स। तो इसको लुकआउट करता है सबसे पहले JVM जो है। तो आपको हमेशा ये सिग्नेचर फॉलो करनी है मेथड की। एंड द मेथड इज क्रिएटेड विथ नेम ऑफ द मेथड एंड्स विथ अ ब्रैकेट। तो हमेशा हम जावा में अगर कुछ मेथड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल यूजर डिफाइंड मेथड, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले रिटर्न टाइप देना पड़ता है, उसके बाद उस मेथड का नाम फॉलोड बाय सर्कुलर ब्रैकेट्स एंड देन कर्ली ब्रेसेस। अब कर्ली ब्रेसेस जब भी हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे अंदर क्या आएगी, इसकी बॉडी ऑफ द मेथड। Now here is one of the important question that why class name and file name should be same in Java. Because according to Java language specification, if a class is declared as public, the name of the source file must match the name of the public class. For example, if you have a public class name hello world, then the program name must be helloworld.java. तो आप जब इस फाइल को सेव करोगे तो इस फाइल का नाम क्या होगा, बेसिक java.1, क्योंकि सबसे पहले लुकआउट ही ये करती है जावा की कौन सी पब्लिक क्लास है। तो ये पब्लिक क्लास है। अगर यहाँ पे और कोई क्लास होती जैसे क्लास बी, तो हमने बी नाम की एक क्लास बनाई पर ये पब्लिक नहीं है। तो जो भी पब्लिक क्लास है हमेशा उसके अंदर आपको मेन मेथड बनाना है और उस पब्लिक क्लास के नेम से ही आपको जावा का प्रोग्राम सेव करना है। द जावा कंपाइलर एक्सपेक्ट्स दिस नेमिंग कन्वेंशन। इफ द फाइल नेम डजंट मैच द पब्लिक क्लास नेम, द कंपाइलर विल थ्रो एन एरर। तो अगर आप जिस क्लास में मेन फंक्शन बना रहे हैं, अगर आप इस फाइल का नाम b.java रखेंगे तो एरर आएगी। Now the second question is, can we run a Java program without creating a class? So you cannot run a traditional Java program without creating a class, as Java is fundamentally an object-oriented programming language where everything is encapsulated within the class. So the main method which serves as an entry point of the program must be defined within a class. तो अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको यही जवाब देना है कि मेन फंक्शन जो है वो ये हमेशा एक क्लास के अंदर होता है, एंड दैट इज वाई विदाउट क्रिएटिंग अ क्लास वी कैन नॉट रन अ जावा प्रोग्राम। एंड द बेसिक सिंटेक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लास फॉलोड बाय द नेम ऑफ द क्लास एंड द सिग्नेचर ऑफ आवर वॉइड मेन मेथड। जो डिफ़ॉल्ट इंपोर्टेड पैकेज होता है वो कौन सा होता है? तो हमेशा आपने जब भी जावा प्रोग्राम में काम किया है तो आप डायरेक्टली यूज़ करते हो बहुत सी चीज़ें। जैसे अगर यहाँ पे मेरे को system.out.println यूज़ करना है, अगर हमारे सिस्टम पे कुछ भी प्रिंट करना है तो हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं विदाउट नीडिंग टू इम्पोर्ट समथिंग हियर। हमको जैसे स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं तो हमको java.util.scanner पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हमको सिस्टम क्लास यूज़ कर रहे हैं तब क्यों नहीं करना पड़ रहा? बिकॉज जावा में डिफ़ॉल्ट इंपोर्टेड पैकेज कौन सा होता है? java.lang। तो java.lang पहले से इंपोर्टेड होता है, हमको करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर कौन कौन सी क्लासें आती है? ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, सिस्टम, मैथ, इंटीजर, थ्रेड एंड देर आर मैनी मोर, बट दिस आर ऑल द इम्पोर्टेंट वंस दैट वी यूज़ इन ऑलमोस्ट एवरी जावा प्रोग्राम। अब आइडेंटिफायर क्या होता है ये हम जान लेते हैं। सो आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन टू अ वेरिएबल, मेथड, क्लास और एनी अदर यूजर डिफाइंड आइटम्स। और आइडेंटिफायर के कुछ नेमिंग रूल्स होते हैं। तो आपका कोई भी वेरिएबल है, मेथड है या क्लास है, तो इन सबको ये रूल्स फॉलो करने हैं। So identifier can consist of letters both uppercase and lowercase, digits also 0 to 9, underscore भी और $sign भी। इसके अलावा आप कुछ यूज़ करोगे तो वो आपको एरर देगा। The first character of an identifier cannot be a digit। तो अगर आपका आइडेंटिफायर एक डिजिट से चालू हो रहा है तो वो वहाँ पे एरर देगा। आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आप कैपिटल के साथ कुछ भी लिख रहे हो और फिर स्मॉल के साथ दूसरा बना रहे हो तो दोनों डिफरेंट कंसिडर किए जाएंगे। कीवर्ड्स को हम एज ए आइडेंटिफायर नेम यूज़ नहीं कर सकते, ये आपको ऑलरेडी मैंने कीवर्ड्स जब समझाया तब बताया। अब वैलिड आइडेंटिफायर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये फाइल सही से लोड नहीं हुई है, मैं एक बार इसको रीलोड कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैलिड आइडेंटिफायर्स नेम है, माई वेरिएबल और ये सारे देख सकते हैं आप, जिसमें हमने सबसे पहले डिजिट यूज़ नहीं किया। अगर आप सबसे पहले डिजिट यूज़ कर रहे हो तो वो आपको एरर देगा। अगर आप बीच में स्पेस दे रहे हो दो वेरिएबल नेम क्रिएट करने से पहले तो वो आपको यहाँ पे एरर देगा। और अगर आप हाइफन यूज़ कर रहे हो तो भी, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई या प्लस भी यूज़ कर रहे हो तो वो आपको एरर देगा, क्योंकि हम क्या यूज़ कर सकते हैं? खाली लेटर्स, अंडरस्कोर, डिजिट्स एंड $sign।
नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जावा कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो जावा में हमको फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है वो कंट्रोल करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, इफ एंड स्विच। लूप स्टेटमेंट में क्या आते हैं हमारे पास, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर ईच लूप। और जंप स्टेटमेंट्स क्या क्या है, ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो हम चाहते हैं कि किसी कंडीशन के बेसिस पे कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कोड जो है वो एग्जीक्यूट करे। तो इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम चाहते हैं कि यूज़र से हम यहाँ पे मान लो यूज़र की एज ले रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल एज 18 है, तो हम चाहते हैं कि हम एक कंडीशन के बेसिस पे डिस्प्ले करवाएं कि इफ़ अगर एज जो है वो 18 से बड़ी है तो हमको क्या करना है, यूज़र जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस मतलब उसका बन चुका है तो वो ड्राइविंग के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे हम वही चीज़ प्रिंट कराएंगे system.out.println का यूज़ करके। सेम वे एल्स में हम क्या बोल रहे हैं कि वो एलिजिबल नहीं है, तो वो एल्स पार्ट के अंदर आएगा। सो ऐसे आप क्या है कंडीशंस हैंडल कर सकते हो कि इफ़ में आपको कंडीशन डालनी है और वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ही वो अंदर जाएगा। सेम वे एल्स में कब जाएगा, जब इफ़ कंडीशन फॉल्स हो रही है, मतलब अगर उसकी एज जो है वो यहाँ पे 18 से कम है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इफ़ स्टेटमेंट्स के टाइप होते हैं सिंपल इफ़ एल्स इफ लैडर और नेस्टेड इफ़। अब इफ़ कंडीशन का यहाँ पे आप सिंटेक्स देख सकते हो, इफ़ देन अंदर कंडीशन आती है और उसके बाद इफ़ का जो ब्लॉक चालू होता है ब्लॉक एंड होता है और अंदर जो भी लिखते हैं वो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही एग्जीक्यूट होगा। नाउ इफ़ का एक और पार्ट होता है जो कि होता है इफ़ एल्स इफ। जब हमको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है तो उसके लिए हम इफ़ एल्स इफ का यूज़ करते हैं। तो इसका कोई प्रोग्राम जैसे हो गया, आपको नंबर चेक करना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो हमने नम में क्या दिया, ज़ीरो दिया यहाँ पे। तो सबसे पहले वो क्या चेक कर रहा है, नम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अगर वो ज़ीरो से बड़ा है तो नहीं है, तो वो यहाँ अंदर जाएगा ही नहीं और वो नंबर इज़ पॉजिटिव डिस्प्ले नहीं करेगा। एल्स इफ में हम क्या चेक कर रहे हैं, नम इक्वल टू ज़ीरो, तो वो यहाँ पे अंदर जाके प्रिंट करेगा नंबर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और मान लो यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर होता तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती, तो वो अपने आप एल्स पार्ट में चला जाता जब वो डिस्प्ले करता है नंबर इज़ नेगेटिव। अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जब हम इफ़ के अंदर इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं। इसका यूज़ क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम प्रोग्राम को, अगर नंबर 0 से इक्वल नहीं है तो अगर नहीं है तो वो अंदर जाएगा, अगर 0 से इक्वल है तो वो डायरेक्टली एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। नहीं तो अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो वो अंदर जाएगा और फिर ये इफ एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है। नाउ अगर हमको यूज़र से इनपुट लेना है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, यूज़र को डायरेक्ट यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड कर रहे थे, बट अगर हमको यूज़र से इनपुट लेना है तो हमको स्कैनर क्लास का यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास को जो है वो इंपोर्ट करा लिया है। इंपोर्ट java.util, यूटिल पैकेज के अंदर हमारी स्कैनर क्लास होती है। उसके बाद हमको क्या करना है, उसका सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। आप ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम सिंपली एस रखा है। अब उसके बाद हम जब भी यूज़र से वैल्यू लेनी है हमको एज की, तो यहाँ पे हमको फिर उसका मेथड यूज़ करना है s.nextInt, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ पे nextInt मेथड का यूज़ होगा। तो अब ये जो वैल्यू होगी ये यूज़र प्रोवाइड करेगा कंसोल से, हमको यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। हम यूज़र से डायरेक्ट जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है तब हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं। तो सेम वे हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट बुलियन, नेक्स्ट लाइन। तो अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग स्कैनर क्लास का हमारे पास मेथड है। सो डिसीजन मेकिंग में इफ स्टेटमेंट के बाद हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया। एंड हियर इज द सिंटेक्स ऑफ स्विच। तो स्विच फॉलोड बाय एक्सप्रेशन, देन केस 1, केस 2 और जो भी आपको वैल्यू देनी है। तो अगर वैल्यू और एक्सप्रेशन मैच कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर केस जो है वो एग्जीक्यूट होगा। सो इस वीडियो का मेन मोटिव ये था कि अब तक हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़ लिए उनका एक मैं आपको फास्ट रिवीजन करवा दूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से फॉर लूप पढ़ेंगे। तो लूप्स चालू करने वाले हैं जिसमें हम सब में डिटेल में पहले उनका कंसेप्ट पढ़ेंगे थ्योरेटिकल, उसके बाद प्रैक्टिकल के भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो आई होप अभी तक आपने जो भी पढ़ा मेरे साथ आपको सारा रिवीजन हो गया। सो अगर आप में से किसी ने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, अगर आपको ये जो कंसेप्ट है ये डिटेल में समझना है, बिकॉज दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो ओनली फॉर रिवीजन पर्पस। एंड दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड इन टूडेज वीडियो। थैंक यू।